Good morning to all of you. Today, on our day 2, we are going to start our continued topic, a chapter number 2 is about the acid base and salt. On our previous lecture, we have discussed about the physical and chemical property in brief about the acid and base. Now, dear student, the next topic is about the indicator. In a board examination, there will be the one mark question will be asked that what is the indicator or explain the different type of indicators. So, what is the definition of indicator? These are the substance which change their color and smell in a different type of substance. यहाँ पर बेटा कोई भी दो चीज की बात है, आइदर उसका कलर चेंज होगा, आइदर उसकी स्मेल चेंज होगी. स्मेल के बदले आप ऑर्डर भी वहां पे ले सकते हो. नाउ टाइप ऑफ इंडिकेटर्स. सो जनरली इंडिकेटर्स जो भी होते हैं उसको तीन टाइप में क्लासिफाई किया जाता है. फर्स्ट वन इज अ नेचुरल इंडिकेटर. They are directly or indirectly occur from nature. They are known as natural indicator. Second one is a synthetic indicator. That means they are synthesized into the laboratory. And third one is the olfactory indicators. Okay, they are related to the smell, taste. Now, dear student, in a natural indicator, first one is a litmus paper. When you pour the litmus paper into the acidic solution, it will be blue to red, and in the basic solution, it will be turned red to blue. That means which type of the colors they are indicating in the proper solution. Second one is about the red cabbage leaf extract. They produce a red color in acidic solution, and in the basic solution they produce a green color. Then flower of hydrogenia plant. They are producing a blue color in acidic solution and a pink color in basic solution. And turmeric, we all are familiar with it. Okay. Acidic solution, there is no changes, and basic solution they are providing the red color. Next one, they are synthetic. In first one, it is a phenolphthalein. Okay, phenolphthalein is a produce a no color in acidic medium, and in basic medium it is a produce a pink color. Then second one is about methyl orange. They are producing red color, and in basic medium they are producing yellow color. Then an olfactory indicator. First one is a onion. It has a characteristic smell like a special smell, and there is a no effect in the basic medium. Then vanilla essence, they have also the retained smell, but a different like a smell, and there is a no changes in the basic medium. And last one is about the clove oil. It has also the retained smell like a vanilla essence, and in the basic solution it has a loose smell. Now, dear student, we are going to discuss about the chemical properties of acid and base. Now, here all the type of the indicators are there, and from this table there will be the one mark of MCQ will be asked. For example, phenolphthalein which give a black color into the acidic solution. Okay, like that type of question is also asked. Or a methyl orange is a produce which color in basic solution. For example, आपको चार ऑप्शन वहाँ पे दिए गए होंगे, कलर इज पिंक, रेड या येलो. So what is the correct answer? It is a yellow. Now, dear student, move on to next topic. It is the chemical properties of acid and base. Now, a reaction of the matter. सबसे पहले chemical property में हम देखेंगे reaction with matter. तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे acid है और दूसरा है मेरे पास base. तो बेटा एसिड की रिएक्शन में मेटल के साथ करवाऊंगा तो मुझे दो चीज प्रोड्यूस होगी, सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. अब ये हाइड्रोजन गैस जो है वो दोनों में कॉमन है कि भाई बेस भी सेम सिचुएशन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, सो इट इज आल्सो प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. यहाँ पे गलती ना हो इसीलिए हम याद रखेंगे डाई हाइड्रोजन गैस. इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डाई हाइड्रोजन याद रखेंगे, क्योंकि आप हाइड्रोजन याद रखोगे तो आप एग्जाम में अकेला H लिख के आओगे तो इन दैट कंडीशन वो गलत हो जाएगा. तो डाई हाइड्रोजन याद रखेंगे तो आप फार्मूला क्या होगा, H2, क्योंकि हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा पढ़ा है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सब डाई फॉर्मेट में वहां पे पाए जाते हैं. अब यहाँ पे रिएक्शन है, चलो हम बैलेंसिंग फॉर्म में रखते हैं, बैलेंस बाद में लेते हैं कि भाई HCl की रिएक्शन बेटा जिंक के साथ होती है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, ZnCl + H2. अब ZnCl2 कैसे हुआ, तो जिंक की बैलेंसिंग 2+ है, Cl की माइनस है, हाइड्रोजन की +1 है. इन 9th स्टैंडर्ड आपने वहां पे स्टडी किया था कि अगर दोनों की बैलेंस डिफरेंट होती है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विल बी टेक अ प्लेस. तो यहाँ पे प्रोड्यूस होगा ZnCl2. अब बेटा यहाँ पे Cl कितना है 2, राइट हैंड साइड, लेफ्ट साइड Cl मॉलिक्यूल कितना है 1, तो मुझे वहां पे 2 लाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 2. सो देयरफॉर फ्रॉम ZnCl2 एंड इक्वेशन इनटू बैलेंसिंग कंडीशन Cl बैलेंस हो गए, यहाँ पे Cl बैलेंस. अब Zn यहाँ पे 1 है तो Zn यहाँ
हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, सो दिस वन इज आल्सो इन बैलेंसिंग कंडीशन। उसके अलावा आपको अनबैलेंसिंग फॉर्म में इक्वेशन अगर याद रखना है कि बैलेंसिंग के चक्कर में हमें नहीं पड़ना है, बैलेंसिंग में कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस है, तो आप सेकंड नंबर का इक्वेशन इजीली याद रख सकते हो, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन जिंक के साथ है। अब Zn has a 2+ वैलेंसी, SO4 has a 2- वैलेंसी, तो दोनों वहां पे एक दूसरे के साथ सीधे कंबाइन होंगे, तो क्या फॉर्म करेंगे ZnSO4, और रिमेनिंग पार्ट क्या होगा आपका H2, सो इट इज अ डाइहाइड्रोजन गैस। सेम वे बेस है यहाँ पे मेरे पास, तो बेस भी वहां पे रिएक्शन करेगा जिंक के साथ, तो वो प्रोड्यूस करेंगे Na2ZnO2। ये वाला क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में आएगा, इट इज नोन एज अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, और इसका नेम भी पूछा जा सकता है, इट इज नोन एज सोडियम जिंकेट, इट इज नोन एज सोडियम जिंकेट, एंड दे आर आल्सो लिबरेटेड डाइहाइड्रोजन गैस। अब चलो ये इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है, तो बैलेंसिंग में सबसे पहले एक बात याद रखना, जो मेटल है उसके अलावा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में हम लोग बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास मेटल कौन सी है, सोडियम, सोडियम बेटा लेफ्ट साइड कितना है 1, राइट साइड कितना है मेरे पास 2, तो 1 को मैं कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 आएगा बेटा, तो यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अभी साइड में रखो, जिंक कितना है यहाँ पे 1, तो जिंक 1 तो हो गया। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या होगी कि जैसे मेटल अपने आप बैलेंस होगी, तो उसके साथ साथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन भी अपने आप बैलेंस हो जाएंगे, जैसे कि ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, सो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन बैलेंसिंग कंडीशन। चलो नाउ वन मोर क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस, हाइड्रोजन गैसेस रिलीज्ड कैन बी टेस्टेड बाय द बर्निंग कैंडल। अब 1 मार्क के क्वेश्चन में आप ऑनलाइन देखोगे तो वहां पे एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि बर्निंग स्प्लिंटर, बर्निंग कैंडल ले जाओ, बर्निंग स्प्लिंटर पास में ले जाओ, तो कौन सा साउंड प्रोड्यूस करेगा, इट विल बी प्रोड्यूसर ऑफ साउंड। ओके, 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए याद रखना, दे आर प्रोड्यूसिंग द ऑफ साउंड। चलो सेकंड वन बेटा है कि रिएक्शन विद द मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब मेटल कार्बोनेट हो तो मेटल कार्बोनेट आपके सिलेबस में Na2CO3, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए NaHCO3, ये दोनों आप वहां पे यूज करते हैं। चलो तो सबसे पहले क्या होगा, एसिड की रिएक्शन में ले रहा हूं मेटल कार्बोनेट के साथ, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रहा है, तो एक रिएक्शन मैंने लिखी है कि भाई HCl + Na2CO3 इट विल बी फॉर्म NaCl H2O + CO2। चलो बैलेंसिंग को हम लोग सीखते हैं कि बैलेंस कैसे किया जाएगा। चलो अब बेटा लेफ्ट हैंड साइड सोडियम मॉलिक्यूल कितना है 2, राइट हैंड साइड कितना है 1, तो उसको मैं मल्टीप्लाई बेटा कितने से करूंगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो एट दैट टाइम Cl बैलेंस हो गया, यहाँ पे भी Na बैलेंस हो गया है। अब बेटा क्या होगा, Cl यहाँ पे कितने है 2, तो यहाँ पे मैं Cl को 2 करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, HCl के आगे 2 से, तो इन दैट कंडीशन Cl आर आल्सो इन बैलेंसिंग कंडीशन। सो सेम वे HCl + NaCO3 लेंगे तो भी क्या होगा, NaCl H2O + CO2, दे आर आल्सो गोइंग टू बैलेंसिंग कंडीशन। अगर आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, यहाँ पे HCl के रिएक्शन NaHCO3 के साथ करवा रहे हो, तो वहां पे NaCl H2O + CO2 वो चीज आपको मिलेगी, और उसके बाद बेस की मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ वहां पे रिएक्शन होगी नहीं। और जनरली यहाँ पे जो CO2 गैस जो प्रोड्यूस होता है, वो CO2 गैस को अगर मुझे चेक करना है तो उसको मैं कहां से पास करूंगा, मुझे उसको लाइन वाटर के ऊपर से पास करना है, दैट मींस CaOH ट्वाइस के ऊपर से, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, इट विल बी फॉर्म CaCO3, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इसके अंदर से हमने पास किया, तो इट विल फॉर्म CaCO3 + H2O, CaCO3 इट इज नोन एज कैल्शियम कार्बोनेट। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या होगी कि भाई OH ट्वाइस है मेरे पास, तो OH को मैं ऐसा 2 बार लिख सकता हूँ, OH ऐसे 2 टाइप लिखे, उसमें से एक ऑक्सीजन मैं CO2 को डोनेट कर रहा हूँ, तो बेटा CO2 किस में कन्वर्ट होंगे, CO3 में कन्वर्ट होंगे, तो यहाँ पे मैंने CO3 लिख दिया। अब CO3 हैज अ 2- वैलेंसी, Ca हैज अ 2+ वैलेंसी, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ सिंपली ज्वाइन हो जाएंगे, एंड रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, HOH, दैट मींस दे आर फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके डियर स्टूडेंट, तो आज के टॉपिक में हमने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा, और उसके बाद इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी उसमें जो केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, कि फर्स्ट वन रिएक्शन विद मेटल एंड सेकंड वन इज द रिएक्शन विद द मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब बेटा इसकी तीसरी जो टाइप आ गई है उसमें है
कि भाई रिएक्शन विद द एसिड एंड बेस। अब एसिड एंड बेस एक दूसरे के साथ क्या रिएक्शन करते हैं, तो उसके बारे में हमें वहां पे स्टडी करनी है। तो व्हेन एसिड एंड बेस बोथ आर रिएक्ट विद ईच अदर, दे आर गोइंग टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो वो लोग क्या क्रिएट करेंगे, सॉल्ट एंड वाटर को फॉर्म करेंगे। तो उसकी रिएक्शन कैसे होती है, तो उसके बारे में हम इसके बाद वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। और बेटा ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू सो मच।